Hello students, welcome back to my channel Maths Ka Adda. This is the miscellaneous exercise of chapter 2 of class 12th. All the links which are related to the previous video of chapter 2 are in the description box, so you guys check it out. Okay, so move on to the exercise. First question is cos inverse cos 13 pi by 6. In place of 13 pi by 6 you write it as 2 pi plus pi by 6. देखो 6 to the 12 and 1, that is 13 pi by 6. If you guys don't think how we write 13 pi by 6 as 2 pi plus pi by 6, you guys simply divide 13 by the 6. How you get 6 to the 12 and you get remainder 1. Okay, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 2 1 by 6. ओके, और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 2 plus 1 by 6. So if we multiply pi, what we get? 2 pi plus pi by 6. And if we solve this, what you get? 6 to the 12 and 1, 13 pi by 6. Okay, ऐसे भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो. So this question reduces to cos inverse cos 2 pi plus pi by 6. Okay, this is 360. 2 into 180, that means 360. 360 plus theta, that means 360 पे देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कहाँ पे चेंज होते हैं? एक तो 90 पे चेंज होते हैं और एक 270 पे चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? 360. तो 360 पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता. तो cos 360 प्लस थीटा, दैट मीन्स इट इज इन द अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द पॉजिटिव. सो इन प्लेस ऑफ cos 2 pi plus pi by 6 you write it as cos pi by 6 because cos 360 plus theta is cos theta. So cos and cos inverse get reduced and you get pi by 6. So this is the required answer. So move on to the question number 2. 10 inverse 10 7 pi by 6. Okay, simply इसको भी लिख सकते हो आप. देखो जब हम डिवाइड करेंगे इसको 6 से, what you get? 6 1 6 and you get 1 1 6 1 1 6. That means 1 plus 1 by 6. अब देखो 1 plus 1 by 6 ही तो है, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया बस. अब ये फॉर्म कैसी बन गई? 10 180 plus theta. 10 180 plus theta, that means 180 plus है, that means it is in the third quadrant, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? 10 और cot पॉजिटिव. सो 10 पॉजिटिव है, 10 180 plus theta, that means 10 theta. So 10 और 10 inverse get reduced and you get pi by 6. Okay, so move on to the question number 3. 2 sin inverse 3 by 5 is equals to 10 inverse 24 by 7. You have to prove this. Okay, अब देखो, so we have the formula which is 2 10 inverse x, not 2 sin inverse x. So how do we solve this? To convert 2 sin inverse x to the 2 10 inverse x. How can you convert this? देखो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है, अब ये जो साइन होती है, इस साइन की ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स 3 क्या है? परपेंडिकुलर, और 5 क्या है? हाइपोटेन्यूज. तो 3 क्या है? परपेंडिकुलर, और 5 क्या है? हाइपोटेन्यूज. ओके, अब 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर तो है, बेस यू हैव टू फाइंड द यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो 2 10 इनवर्स 3 by 4 हो गया. अब क्या हो गया? ये किसका फॉर्मेट बन रहा है? 2 10 इनवर्स x का. इफ वी कंपेयर दिस टू द फॉर्मूला यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 by 4. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू दिस फॉर्मूला. 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 minus x स्क्वायर. 10 इनवर्स 2 इंटू x, दैट मीन्स 3 by 4 अपॉन 1 minus x स्क्वायर, दैट मीन्स 3 by 4 होल स्क्वायर. ओके, जब आप इसको ये सॉल्व करोगे, व्हाट यू गेट? 3 by 4 इंटू 16 अपॉन 7. ओके, देखो ये कैसे फॉर्म बन गई? a अपॉन b अपॉन c अपॉन d. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये जो d है किसके साथ चला जाता है? मल्टीप्लाई में a के साथ. दैट मीन्स a इंटू डी अपॉन b इंटू सी. ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू गेट? 10 इनवर्स 24 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. हेंस proof we get the required result. So move on to the question number 4. Sin inverse 8 upon 17 plus sin inverse 3 by 5 is equals to 10 inverse 77 upon 36. You have to prove this. Okay, again we have the formula 10 inverse, not sin inverse x plus sin inverse y. 10 inverse x plus 10 inverse y. What is that? 10 inverse x plus y upon 1 minus x square. That means sum of the angles and 1 minus product of their angles. Okay, so convert this into the 10 term. सेम ऐसे ही प्रीवियस वाले की तरह करोगे. क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आप इसको चेंज कर लोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, क्योंकि 10 की टर्म में लेके आना है. इसको भी आप या तो आप क्या कर सकते हो? ट्रिपलेट्स याद कर सकते हो. जैसे हमेशा 3 4 5 होता ही है. ठीक है, जैसे यहाँ पे 3
अपॉन 5, ये क्या है 3 क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकालने के लिए आपको 4 मिल जाएगा, बेस की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 3/4। ऐसे ही सेम इसको चेंज कर लेना। जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मेट बन गया तो x की अगर आप इसको कंपेयर करोगे इस फॉर्मूले से, यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8/15 एंड y की वैल्यू 3/4। सो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इनटू दिस फॉर्मूला एंड यू गेट 8/15 प्लस 3/4/1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ 8/15 एंड 3/4। इफ वी सॉल्व दिस, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 15 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सेम बेस से डिवाइड कर, नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको जो कट, जैसे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कट मत करना क्योंकि ये कैलकुलेशन को बढ़ा सकता है, ओके। तो आप क्या करोगे, जैसे ये इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए तो आप बस सिंपली इसकी एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 15 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे भी 15 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 60। आप 60 डायरेक्ट लिखना मत, वैसे ये वाला ईजी है क्योंकि आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो है न्यूमेरिक टर्म्स होगी वो बहुत टफ होगी, तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, जब आप इसको यहाँ से कट कर देते तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यू गेट tan इनवर्स 77/36। इसको करने से आपका टाइम बच सकता है, ओके। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये प्रूफ करना है आपको। देखो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जो tan इनवर्स cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो, बट हमारे पास फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके। सो कन्वर्ट कर लो इसको tan इनवर्स में, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स 3/4 और इसको कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स 5/12। अब इसको कंपेयर करो इस फॉर्मूले से, यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 एंड y की वैल्यू 5/12। सो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इनटू दिस फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ओके। जब आप इसमें पुट करोगे व्हाट यू गेट, सॉल्व कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ कि कैलकुलेशन आप जब इसका एलसीएम लोगे तो 12, देखो 4 और 12 का जब एलसीएम लोगे तो 4 1 4 3 है ना, तो 12 भी आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एलसीएम 12 नहीं लिया है, मैंने 4 × 12 कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही ताकि जो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर वो कैंसिल आउट हो जाए और कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ओके। तो यू गेट tan इनवर्स 56/33। लेकिन हमें आंसर क्या लेके आना है, cos इनवर्स 33/65, ओके। सो ये क्या है, देखो 10 की टर्म में, तो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cos निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस तो है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए देखो बेस तो है हमारे पास 33, ये क्या है परपेंडिकुलर। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, ओके। सो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी 65, ये आप कैलकुलेट खुद करोगे। सो cos में कन्वर्ट करने के लिए देखो cos इनवर्स, यहाँ पे क्या चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सब बेस क्या है 33 और हाइपोटेन्यूज क्या है 65, ओके, which is equal to the right hand side, hence proof we get the required result. So move on to the question number 6. Cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 is equals to sin inverse 56/65. सेम फॉर्मेट बन रहा है हमारे पास, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x जब दोनों के एंगल इक्वल होते हैं, विच इज इक्वल टू द π/2, ओके। लेकिन यहाँ पे तो एंगल इक्वल नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर दो tan टर्म में, ठीक है। दिस अगेन द फॉर्मेट ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, व्हाट इज दैट, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सो पुट द वैल्यू ऑफ x which is 5/12 and y which is 3/4 into this formula and you get the tan inverse 56/33. But you have to prove sin inverse which is not equal to sin inverse 56/65. तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स को कन्वर्ट करोगे साइन में। अब ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन आपको साइन के लिए क्या चाहिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो ये सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की ट्रिपलेट्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज देखो यहाँ पे भी क्या आई थी, यही था ना 33, 56 और 65, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 65 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ओके। And question number 7 is your homework, which is same as the 6th part, okay. So move on to the question number 8.
tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 विच इज इक्वल टू द π/4. यू हैव टू प्रूव दिस. ओके, देखो अब ये तो 10 की कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे, tan इनवर्स की 4 टर्म्स हो गई. देखो अब इनकी पेयरिंग बनानी शुरू कर देते हैं. देखो इन दो में फॉर्मूला लग सकता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इन दो में फॉर्मूला लग सकता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. ओके, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो गई 1/5 और यहाँ पे y की वैल्यू 1/7. सो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स सम ऑफ देयर एंगल्स अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ देयर एंगल्स. ठीक है, वही लगा दिया यहाँ पे, बस इसको सॉल्व कराएं, यू गेट tan इनवर्स 12/34. और यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8. सेम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है. यहाँ पे भी आप वो यूज करोगे सम ऑफ देयर एंगल्स 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ देयर एंगल्स. तो यहाँ से सॉल्व करके क्या मिलेगा tan इनवर्स 11/23. ओके, so this again reduces into tan inverse x plus tan inverse y. So again use the formula of tan inverse x plus tan inverse y. What is that? Sum of their angles upon 1 minus product of their angles. बस सिंपली कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है. what you get 325/325. if we cancel out what we get 1. ये रिड्यूस हो जाएगा tan इनवर्स 1 में. अब देखो हमें यहाँ पे इस ब्रैकेट में ऐसा फंक्शन यहाँ पे पुट करना होता है जिसका इनवर्स बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे कि tan इनवर्स और वो फंक्शन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और हमें बस एंगल की फॉर्म में आंसर चाहिए होता है. ठीक है, इन प्लेस ऑफ 1 यू राइट इट एज tan 45 बिकॉज tan 45 इज इक्वल टू 1. सो दिस रिड्यूस एंड यू गेट π/4 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. हेंस प्रूफ वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. tan इनवर्स √x is equals to 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x and x belongs to 1 0 comma 1. Okay, so the value of x is lie between 0 and 1. So you have to show this. देखो अगर मैं इस 2 को इधर शिफ्ट कर दूं, मतलब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, 2 tan इनवर्स √x is equals to cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. तो ये भी हम शो कर सकते हैं. ओके, अब देखो क्यों करा है मैंने ये, क्योंकि मुझे यहाँ से फॉर्मेट नजर आ रहा था 2 tan इनवर्स एक्स का. हमारे पास ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसकी टर्म में यहाँ पे आंसर चाहिए मुझे, कॉस की टर्म में. तो कॉस में क्या फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, साइन में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, तो मुझे यहाँ पे कॉस में आंसर चाहिए, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर मैं देखो इस फॉर्मूले, इस LHS को इस फॉर्मूले से कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √x. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू दिस फॉर्मूला एंड यू गेट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना. देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, √x का होल स्क्वायर, ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, √x. अब ये स्क्वायर और अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. हेंस प्रूफ वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. Move on to the question number 10 which is very important. Okay, cot inverse in bracket √1 plus sin x plus √1 minus sin x upon √1 plus sin x minus √1 minus sin x which is equal to x/2. You have to prove this. Okay, so सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अभी मैं बस यहाँ पे फिलहाल किसको सॉल्व कर रही हूँ, ब्रैकेट को. देखो जब भी आप डिनोमिनेटर में अंडर रूट देख लेते हो तो उसको रेशनलाइज करना होता है. अब देखो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका अपोजिट साइन दैट मीन्स प्लस साइन लेके अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखो ये वाली जो टर्म है ये सेम एज इट इज लिखी है. रैशनलाइज करने के लिए मैंने ये वाली टर्म ली है, इसका अपोजिट साइन लेके. ठीक है, अपोजिट साइन से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दी. देखो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना. व्हाट इज दैट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और देखो डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मेट बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो पुट दीज इनटू दैट फॉर्मूलेज, यू गेट, देखो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है तो a स्क्वायर दैट मीन्स √1 प्लस साइन होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन होल स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन और b की वैल्यू 1 माइनस साइन इन अंडर रूट. ओके, और नीचे क्या फॉर्मेट बन रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, a स्क्वायर दैट मीन्स √1 प्लस साइन होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स √1 माइनस साइन होल स्क्वायर. ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो गए. ठीक है, व्हाट यू गेट 1 प्लस 1 2
साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। अब देखो ये अंडर रूट, ये यहाँ पे है 1 प्लस साइन एक्स और ये यहाँ पे है 1 माइनस साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख सकते हो। जब कभी भी ऐसा हो अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ए बी, ठीक है। मैंने बस क्या करा है, इनको सेम एक अंडर रूट में शिफ्ट कर दिया है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, दिस अगेन दैट फॉर्मेट, व्हाट इज दैट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर ही रहेगा, b स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर, ठीक है। ये 2 और 2 कॉमन ले लिया मैंने बाहर। डिनोमिनेटर में देखो क्या बनना था, 1 प्लस साइन एक्स माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज आ गया। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये -1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स दैट इज 2 साइन एक्स। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा बस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब इस स्क्वायर से भी अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट यू गेट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ओके। अब देखो क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, कॉट इनवर्स था बाहर, ठीक है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब देखो इसके फॉर्मूले, ये कहाँ से मैंने फॉर्मूले इसके भी बताए थे कि 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, यूजिंग कॉस 2x, कॉस 2x के फॉर्मूले यूज करके मैंने इन दोनों के फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे डिराइव नहीं करने, यहाँ पे फॉर्मूले बस डायरेक्ट आपको लिखने हैं। तो इन प्लेस ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स यू राइट इट एज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखो साइन एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला पता है हमें, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैं इसके एंगल को अगर मैं हाफ कर दूँ तो मुझे इसके एंगल को भी हाफ करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे साइन x की वैल्यू 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ साइन x विच इज 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, ओके, इनटू दिस ब्रैकेट। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस कॉस x बाय 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर का एक कॉस x बाय 2 और डिनोमिनेटर का तो कॉस x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो कॉस अपॉन साइन, और देखो एंगल तो x बाय 2 है, तो कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट, इस कॉट से कॉट इनवर्स रिड्यूस हो जाएगा, यू गेट x बाय 2, hence proof we get the required result. I hope you guys like this series. If you guys like this series, give it a big thumbs up, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.